welcome and share the word of God. Yes, can you hear me, Brother Richard? I can, yes. Thank you, Brother Shabir. Okay. All right. Well, shalom and good evening. I'm glad to be with you tonight to share a message of truth. My topic is about hope. Hope is to have expectations that something in the future will happen. मेरी तरफ से आप सबको सलाम और आज खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे थोड़े वक्त के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए उम्मीद के बारे में जो आज का हमारा मौजू है वो उम्मीद है और इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम सीखेंगे। Well, what are some of the ways we practice hope in our daily lives? Here are some examples. If you have a garden, your hope is to harvest your fruit. First, you till the ground, then plant the seeds. But do you see the fruit immediately? No. मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आपने एक बाग लगाया है तो इमीडिएटली यानी कि आप जल्दी से उसका जो भी बाग आपने लगाया है अगर आप उसका फल हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक उम्मीद है कि जब वो बड़ा होगा तो फिर आप उस फल को खा सकते हैं। But do you expect to see the fruit in the future? Yes. You must be faithful to water and feed your garden. Over time, you see the plants grow, then your expectation to reap your harvest grows stronger. Then one day, your fruit is mature and ready to pick. और जब आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो जब उसको आप पानी देते हैं उसकी देखभाल करते हैं और आप आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पौधा तैयार होगा और फिर जब वो पौधा तैयार होता है और अपना फल देता है तो फिर आप उस फल को तोड़ते हैं। Another example is when you expect guests in your home. When you invite them, it is for a time set in the future. Before they arrive, you may prepare your home by arranging a meal to welcome them. When your guests arrive, you are ready because you took action to receive them. और मैं एक और मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी अपने अहबाब को अपने घर में दावत देते हैं, जब उन्हें बुलाते हैं अपने घर में उनकी मेहमान नवाजी के लिए, तो जब वो आपके घर में आते हैं इससे पहले ही आप घर का क्या करते हैं, वो आप सफाई करते हैं, उनके खाने का इंतजाम करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो आएंगे और उस खाने को खाएंगे। In both of these examples, harvesting the garden and receiving your guests were the hope. The one having the hope took action to receive them. The hopeful one fully expected these things to happen in the future, and eventually both happened right at the right time. और जो उम्मीद है, जिस तरह के मेहमान आपके आपके घर में आ रहे हैं वाली है या किसी पौधा लगाने वाली कि ये एक उम्मीद पर मबनी मसाले हैं कि जो आने वाले वक्त में पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा, जो आने वाले वक्त के बारे में सोचकर आप अपने जहन में इस बात को रखते हैं तो मतलब ये आप एक उम्मीद पर हैं। In ancient times, the Jewish people had a hope. This hope was for God's Messiah to rule the nations forever. Well, you may have heard of him. His name is Jesus. He did come, of course, but one thing happened that the people of Israel did not expect. Jesus, the Messiah, died. For this reason, many of Israel did not believe he was the true Messiah. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि जमाना कदीम में गुजरे जमाने में कुछ यहूदी लोग थे जो जनाब मसीह की आमद के मुंतजर थे, लेकिन एक बात जो हैरान कुन साबित हुई उनके लिए और उनकी जिंदगियों में, जब मसीह यीशु को कत्ल किया गया, मारा गया, तो फिर कुछ लोगों का ईमान इस बात से हट गया कि वो मसीहा है उनका जिसके वो उम्मीदवार थे, जिसकी उन्होंने अपनी जिंदगी में उम्मीद लगाई हुई थी। 3 days after Jesus was killed, something else occurred that the people did not expect. The one true God raised his son Jesus from the dead. This resurrection was permanent. In fact, Jesus showed himself to his followers for 40 days after his resurrection. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि जो लोग इस बात को नहीं मानते थे, चाहे वो यहूदी थे या जो और थे, और जनाब मसीह को यहोवा रब्बे कायनात ने, जो दुनिया जहान का रब है, उसने मुर्दों में से जिंदा किया। और जनाब मसीह के बारे में बयान कर रहे हैं कि वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे।
In the book of Acts, chapter 1, Jesus gave instructions to his apostles. After this, he was lifted up to heaven to sit at the right hand of his Father, the one true God. Let us look at the apostles' reaction to this incredible sight. और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, ईमाल की किताब में से, तो जो रसूलों की जो हदायत थी, और जब उसको उठाया गया और एक सच्चे खुदा की दहनी तरफ जाकर वो बैठ गया, इसके बारे में हम देखेंगे ईमाल की किताब में से। Acts chapter 1, verses 9 through 11. And when he, Jesus, had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud received him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. ओके, सो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। हिमाल की किताब है, उसका पहला बाब और आयत नंबर उसकी 9 और 11 खुदा के बंदा ने तलावत की है। और मैं वक्त की नजाकत को जानते हुए जो तर्जमा है वो मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी को बात की समझ ना आए तो वो अपने साथ अपनी बाइबलों में से अपने रेफरेंस को निकाल सकते हैं, मेरे साथ रहिएगा। हिमाल उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं जो आयत खुदा के बंदा ने यहाँ पर पढ़ी है, मैं पढ़ देता हूँ उसको। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, है गलीली मर्दो, तुम क्यों आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। These two messengers said that Jesus is returning in the same way as he went. He was lifted up, and a cloud took him into heaven. In the Gospel of Mark 14:62, when asked by the high priest if he was the Messiah, Jesus replied with, I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. और यहाँ पर हम देखते हैं अपनी मजीद रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से खुदा का बंदा बयान कर रहा है, वो जो दो मर्द थे जो सफेद पोशाक पहने हुए थे, वो इस तरफ उनको आगाह कर रहे थे, इस बात का उन्होंने उनसे जो है वो बयान किया कि जिस तरह तुम जनाब मसीह को आसमान पर जाते देख रहे हो, इसी तरह आते देखोगे। और मजीद अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं मरकस जनाब मसीह की लिखी जो मरकस की मार्फत लिखी गई जनाब मसीह की जो अंजील है, जो खुशखबरी है, उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 62 है, मैं तलावत करूंगा। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को कादिर मुतल की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। Jesus identified himself as the foretold Messiah that was well known by the Jews in his day. This foretelling is in the book of Daniel, chapter 7. Let us go there and learn more. और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि जनाब मसीह ने जो अपनी पहचान करवाई, जो पेशन गोई की गई थी पुराने अहदनामा में, उसके मुताबिक ही बताया कि हाँ मैं मसीह हूँ जो खुदा का भेजा हुआ हूँ। और मजीद देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए दानियल उसका बाब नंबर 7 है और आयत नंबर 13 और 14 है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से जिनके पास है। Daniel chapter 7, verses 13 to 14. I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days, and he was presented before him. And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. बाबर बाबर Brother Sabir, you there?
Your spiritual care, John. I will approach you. Please. Brother Richard, can you listen me? Please carry on. Go ahead. Brother Pastor Abraham Shahan may be a network problem. That's why he did not connect with us. So I will not encourage you. You can see me. Okay. Please. हाँ ठीक है चल रहे ओके ओके ठीक है कैरी ऑन Please. Go ahead. Would you like me to continue? या Okay. Okay. God has already chosen a day in the future when all dominion and authority in this present age will be taken away. The Ancient of Days, who is the one true God, will give this dominion to rule over all nations to the Son of Man, who is Jesus. खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है बल्कि सिखाता समझाता है और उसने पूरी जहान की कौमों उम्मतों और कबीलों के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का हालेलुया हालेलुया Our hope is for Jesus to return and establish God's kingdom on earth. The time for Jesus to return as Messiah has already been appointed by God, but we do not know when that it will be. It is our responsibility to be ready for that time. खुदा यीशु मसीह नासरी का आसमानों के आसमान में भी नहीं समा सकता खुदा ने उसको अपनी मर्जी पूरा करने के लिए जमीन पर भेजा और जो कोई उसके हुक्मों पर उसकी बातों पर उसके कानून पर अमल करेगा जिस तरह वो आसमान पर है उसके मानने वाले भी उसी के साथ आसमान पर उसके साथ रहेंगे हालेलुया हालेलुया आमीन Let us go now to Paul's first letter to the Thessalonians. We will begin to look at how we as disciples are to wait and prepare for the return of Jesus. आइए हम कंसिलियम की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला पत्र बीचवन चैप्टर एंड बीचवन वर्स 1 Thessalonians 1, verses 3, 8, and 9. Remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. खुदा का कलाम कंसिलियम की कलीसिया के नाम जो पौलुस रसूल का पत्र उसने लिखा है कि खुदावंद खुद फरिश्ता की ललकार और नरसिंगा की आवाज के साथ अपने फरिश्तों के साथ जमीन पर आएगा और उस वक्त दुनिया की तमाम तर कौमें चाहे यहूदी चाहे यूनानी चाहे इस्लामी चाहे जितनी भी दुनिया की कौमें हैं वो उसे आसमान से उतरते हुए देखेंगी और जितनों ने उसे कबूल किया आसमान पर उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे हालेलुया हालेलुया Paul was praying to God, who is the Father, for these disciples to continue in hope. It is this hope in the return of Jesus Christ that inspires the work of faith and labor of love. And to have faith is to trust in and obey the commands of the Lord Jesus. खुदा का बंदा पौलुस खुदा से दुआ करता है कि आसमानी बाप जितने लोगों की उम्मीद तेरा बेटा यीशु है मैं तुझसे दुआ करता हूं कि इनकी उम्मीद यीशु के नाम में कायम रहे और ये तुझ में कायम रहे ताकि तेरे अमाल तेरे कानून इनमें बढ़ोतरी करते रहे आमीन
We are to have the mind of Christ as we labor in love like he did. We care for others in love like he did. We forgive in love like others like he did. We serve in love like he did. God created people in his image. Christ is the example of that image. जब हम खुदा के कवानीन पर उसकी बातों पर अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नासरी के अमाल, यीशु मसीह नासरी की खूबियां जिस तरह उसने माफ किया जब वो सलीब पर था तो उसने अलग और माशरा के पास में कहा था कि अल्लाह इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये इस बात की गवाही है क्योंकि खुदा ने पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर पैदा किया। हालेलुया। If Jesus is our Lord, then we repent from our former ways and obey him by serving the living and true God like he did and does to this day. It says here that these disciples turned from idols to serve the living and true God. जब हम यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, इकरार करते हैं और उससे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो खुदा हमें तो कराता है। हमारी जिंदगी से, हमारे अमाल से, हमारे किरदार से खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाता है। Do you know who the Bible defines as the true God? Let us go now to the Gospel of John, chapter 17. At this point, I want to speak about the Unitarian faith, and then we will continue on the topic of hope. Thank you. ओके जी। और अब हम मजीद देखेंगे खुदा के कलाम में से यूनिटेरियन के ईमान के मुताबिक सीखेंगे मजीद। Okay. John chapter 17, verse 3. And this is eternal life, that they, the Father, they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुदा है, जो वाहिद रब है और जनाब मसीह जो उसका बेटा है। These are the words of Jesus praying to the Father. Jesus calls the Father the only true God. Think about this. If Jesus called the Father the only true God, can there be any other person that can be properly called the true God? If the Father is the only true God, can the Son also be the true God? What about the Holy Spirit? Can he be another person called the true God? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जनाबे मसीह के खुदा के बारे में, जो वाहिद और सच्चा खुदा है, जो तमाम मखलूकात का खुदा है। और क्या हम ये तस्वर कर सकते हैं कि दुनिया में कोई और खुदा है जिसको हम सिजदा करें, जिसकी ताजीम और इबादत करें? If Jesus himself defines the only true God as the Father, then the answers to the questions I just asked are no. The Bible does not teach that God exists as three persons from all eternity. Throughout the Bible, God is repeatedly referred to in the singular as one over 12,000 times. और खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो वाहिद खुदा की बहुत बार बाइबल मुकद्दस में बहुत बेशुमार हवाला जात मिलते हैं। वो बयान कर रहा है कि 12,000 जो ऐसे मौके हैं जहां पर हमें खुदा जो हकीकी और वाहिद है उसके बारे में मिलता है, जो दुनिया और जहान का खालिक है। So why is the Trinity taught as truth? There is convincing historical evidence that the Trinity developed from improper interpretation of some scripture. First of all, there was no Trinity until the year 381 AD. At that time, there was a lot of dispute over the identity of Jesus. It was developed by so-called church fathers under the authority of the Roman emperor. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि ट्रिनिटी के बारे में कि जो इसका आगाज हुआ, वो इसकी जो बता रहा है कि जो बेसिकली जब इसकी इब्तदा हुई और वो 381 में जो है इसकी इब्तदा हुई। और इसके जो मानने वाले हैं, जो इसकी जो इसे ईमान को के जो पैरोकार हैं, उनके बारे में वो मजीद वो बता रहा है। These men, these church fathers, were heavily influenced by Greek and Roman culture and philosophy.
They interpreted scripture by this influence because they had little Jewish interpretation of the scriptures. When the Trinitarian creeds were agreed upon by these men and the emperor, it was enforced upon the empire as law. If church leaders did not agree to these creeds and taught that Jesus was created by God, they were persecuted and some were even killed. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि जो बयान करने वाले थे, बताने वाले से उस वक्त के जो यहूदी थे और जो रमानी थे, वो अपने कल्चर और अपनी जो रवायात को जो है वो मानते थे, और इस बात की वजह से ही वो इस अकीदे और इसकी जो है वो पैरवी करते रहे, ट्रिनिटी को मानते रहे. So why is it still so popular to believe in a Trinity? When something has been the same for over 1700 years, it is difficult to change. That is why the Bible, the Way of Truth Ministry of Pakistan, has a mission to bring attention to the Unitarian faith, the faith that they, as well as I, believe was taught in the first century, the faith that Jesus himself believed and taught. और खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि 1700 साल से ये अकीदा चल रहा है और इसके मानने वाले इसको मानने हैं, और बाइबल सच्चाई का रास्ता है. ये पाकिस्तान की एक जो मिनिस्ट्री है जो इस यूनिटेरियन ईमान पर काम कर रही है, ना कि ट्रिनिटी पे काम कर रही है, बल्कि यूनिटेरियन ईमान पर काम कर रही है. और ये इनका वो ईमान है जो पहली सदी का ईमान था, जो रसूलों का ईमान था, जो जनाब मसीह का ईमान था, और उसी ईमान को ये पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं. We believe it is time to restore the original and simple message of the faith. Not only is it spreading in Pakistan, but more and more people are coming to realize this message in India, throughout Europe, Australia, and here in the USA and North America. A new reformation is beginning. और यहाँ पर मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि ये ईमान ना सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि अमेरिका में, भारत में, और इसके अलावा शुमाली अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ और ममालिक में भी बड़ी तेजी के साथ जो इसके जो मिशनें हैं, जो इसकी मिनिस्ट्रियां कायम हो रही हैं यूनिटेरियन ईमान की. There are many more scriptures which clearly state God is one person and that Jesus is his fully human son. We will now continue on the topic of hope, and I will point out some more of these scriptures along the way. और मैं मजीद इस हवाले को आपके साथ शेयर करूंगा उम्मीद के बारे में, और बाइबल मुकद्दस में बेतहाशा हवाला जात हैं जो खुदा की वाहदानियत को बयान करते हैं. सो मैं उम्मीद के मैसेज को लेकर आगे बढ़ता हूं. Let us return to 1 Thessalonians chapter 1 and continue this message of hope. और आगे हम बढ़ते हैं अपने पहला तस्सलुनीकियों है उसका पहला बाब. 1 Thessalonians chapter 1 verses 9 through 10. For they themselves report concerning us the kind of reception we had among you and how you turned to God from idols to serve the living and true God and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. जब हम पहला तस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत की तिलावत करते हैं तो उसमें लिखा है, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिर कर खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर हो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु को, जो हमको आने वाले अजाब से बचाता है. We are to wait for God's Son to return. Waiting does not mean we do nothing. As we serve the living and true God, we wait with patience and faithfulness. Remember how I spoke about planting a garden and inviting a guest to your home? In both examples, the hopeful one who planted a garden and invited a guest stayed busy by preparing for the arrival of their expectation. और यहाँ पर मैं आपको बयान कर देना चाहता हूँ, ये सेम उसी तरह है कि हमें खुदा के बेटे के वापस आने का इंतजार करना है. जिस तरह के मैंने आपको पहले भी मिसाल दी बाग के बारे में या दरख्त के बारे में और मेहमानों के घर में आने के बारे में, इसी तरह जिस तरह हमने उनकी तैयारी की, घर में जब मेहमान आए उनकी तैयारी की, सेम इसी तरह हमें खुदा के बेटे के आने के मुंतजर रहना है और तैयारी करनी है.
God wants us to stay faithful and busy in service to Him. We do this as we wait for Jesus to return and deliver us into God's everlasting kingdom. Before Jesus can establish the kingdom of God, the kingdoms of this world must be removed. This is God's task, and it's not ours to accomplish. God will overturn the ungodly systems of this world and destroy them and those who reject His word of life. This is the wrath to come. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि खुदा जो है चाहता है कि हम वफादार रहें और उसकी खिदमत में हर वक्त मसरूफ रहें। हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हमारे जहन में जनाब मसीह के आने का इंतजार होगा, और हमें जब वो वापस आएंगे, जब हम उसमें मसरूफ रहेंगे, मसरूर रहेंगे, तो फिर हमें वो बादशाही में पहुंचाएगा। और दुनिया की जितनी भी सल्तनतें हैं, ये जो जहान फानी है, इसको फना करके हमेशा के लिए वो बादशाही को कायम करेगा। Those who have Jesus as Lord are saved from this wrath. Take a look at Romans chapter 5 and establish this point. और हम आप अपनी मजीद रहनुमाई के लिए देखते हैं, और रोमियो उसका बाब नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 5 और 9। Romans 5, 8, and 9. But God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. और खुदा के कलाम में मरकूम है रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर खुदा के बंदा ने 8 और 9 जो है वो तलावत की है। मैं इस हवाले को पढ़ूंगा। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से अजाब इलाही से जरूर ही बचेंगे। This is God's plan for salvation from His wrath. Jesus Christ died for us. Those who confess and follow Jesus in faith as Lord and believe God raised Him from the dead are saved from God's wrath. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि ये एक नजात का मनसूबा था, ये एक नजात का सिस्टम था खुदा का। और जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि जनाब मसीह को खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। So, why must God destroy the wicked with His wrath? Because God is just, and He justifies those who choose to receive and obey His ways. This is grace. Also, because God is just and cannot force people to obey Him, He cannot allow those who reject Him into His everlasting kingdom. If He did, then wickedness would again corrupt this new creation. This is justice. और खुदा का बंदा यहाँ पर बयान कर रहा है कि खुदा जो है वो शरीरों को तबाह करेगा, क्योंकि खुदा आदिल है। जो लोग रास्तबाज नहीं है, जो खुदा के साथ चलने वाले नहीं है, जो राह हक से भटके हुए हैं, खुदा से दूरी पर हैं, खुदा उनको तबाह करेगा, बर्बाद करेगा जो शरीर है। क्योंकि खुदा जो है वो आदल है, इंसाफ को पसंद करता है, और जो लोग उसकी अतायत करते हैं वो जरूर अबदी बादशाही में जाएंगे। The wrath of God sounds harsh, but it is necessary in order for His righteousness to prevail. When Jesus returns someday, He will establish this righteous kingdom. This is our hope that we keep in front of our minds. Hope gives us direction and keeps us on the course of holy living. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि वो जो दिन होगा शरीरों के लिए सख्त लगता है, लेकिन जो लोग रास्तबाज हैं वो उस दिन पर गालिब आएंगे। जो लोग यीशु के वापस आने का इंतजार करते हैं, जो खुदा में मसरूर रहते हैं, जो खुदा की बंदगी और अतायत में मसरूफ रहते हैं, उनके लिए एक उम्मीद है। और वो उम्मीद क्या है? हमेशा की जिंदगी है। जो लोग यीशु को, जो उसकी आमद है, उसके मुंतजिर हैं। Let us now consider some ways in which we can serve the living and true God in light of the hope. We will look at some verses in Peter's first letter. और हम खुदा के कलाम में से मजीद अपनी रहनुमाई के लिए उम्मीद के बारे में कुछ और हवाले देखेंगे। पहला पतरस और उसका बाब नंबर पहला बाब और उसकी पहली और तीसरी आयत है। वर्स नंबर 3।
1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। Here's another verse that places Jesus at a lower status than God. Now, I don't mean to take away the majesty and wonder of Jesus the Messiah. He is the greatest and most perfect person to ever live. God the Father exalted him to be at his right hand, but we must maintain the identity of Jesus according to the scriptures. और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा, यहाँ पर जो जनाब मसीह है, उनका जो स्टेटस है, जो उनका लेवल है, यहाँ पर भी खुदा से नीचा दिखाया गया है। और यीशु मसीह की हम अजमत और उनकी जो इज्जत या उनकी जो उसमें हम किसी भी तरह किस्म की जो है वो कमी नहीं ला रहे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि खुदा जो है, जो तमाम कायनात का मालिक और रब है। It says here that the Father is the God of our Lord Jesus Christ. The Son of God has a God. So logically then the Son is not God just by simply reading this verse. Okay, let's get back to hope. और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ कि हमारा जो बाप, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो खुदा है, ठीक है, उसने ये आयतें पढ़ने का मकसद सिर्फ मुझे आपको बयान करना है कि जो खुदा है वो तमाम कायनात का मालिक है और जनाब मसीह उसका बेटा है। और आए आगे हम उम्मीद की तरफ, जो अपने ना तौबा की तरफ आगे बढ़ते हैं। As we continue in verse 3, it says that God has caused us to be born again. Well, what are we born again unto? To what purpose? Our new life is through the resurrection of Jesus, is to a living hope. When we are born into this world, life is temporary. We do things that do not last. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि हमने तीसरी आयत को पढ़ा है, वो ये कहती है कि खुदा ने हमें नए सिरे से पैदा किया। किस वजह से हमें वो दोबारा पैदा किया? हमारा दोबारा पैदा करने का मकसद क्या था? क्या वजह थी? हमारी नई जो जिंदगी है वो एक जिंदा उम्मीद में है कि जब हम इस दुनिया में पैदा हुए तो जिंदगी आर्जी होती है, हम वो काम करते हैं जो कायम नहीं रहते। We may go to school, get a job, get married, or have a family. All of these things are needful for us to do, but they will all end. If a person continues to live for this life only, for his or own satisfaction, no work of their flesh will save them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, नौकरी हासिल करते हैं, शादी करते हैं या अपना खानदानी कोई भी काम करते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं, हमें करना क्या है, लेकिन वो सब खत्म हो जाएंगी। ये जो रोजमर्रा जिंदगी की हमारी मसरूफियात हैं, अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी को सिर्फ अपनी जात के लिए जिए, सिर्फ अपनी जात के लिए, तो वो इत्मीनान को हासिल कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ जिस्म के काम हैं, ना कि रूह के। Every person that is born into this world has one job. That job is to get right with God. Every person has choices to make. The choices are either to follow their own ideas or the way of God's righteousness. A person can choose to ignore and disobey God. This is to follow the ways of the first Adam, which ends in death. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, एक काम होता है, वो काम खुदा के साथ दुरुस्त होना, अपना लगाव रखना। अगर कोई शख्स अपने पास इस बात को का इंतखाब करता है और खुदा के साथ मुखलिस रहता है, तो फिर अगर वो खुदा की पैरवी करता है तो वो शख्स अपनी जिंदगी को बचा सकता है, खुदा के हुक्मों पर अमल करके, उसकी पैरवी करके। Or a person can choose to seek God and obey him. This is to follow the ways of the second Adam, the Lord Jesus Christ. It is by making this choice that one is made right with God, and the result, everlasting life.
और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि अगर हम दूसरे आदम की पैरवी करते हैं, उसका जिसकी उसकी हदायत करते हैं, अगर हम उसकी पैरवी और उसका इंतखाब करते हैं, तो फिर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह का इंतखाब करते हैं, तो एक शख्स खुदा के नजदीक दुरुस्त किया जा सकता है, और यही हमारी हमेशा की जिंदगी का नतीजा बनेगी। When we are born again into this new life, it means that we have a new life in Christ. Our entire view is different. Old and selfish ways are passing away, and all things are new in Christ. We may hope for things to get better in this world, but to be honest, friends, the world keeps getting darker. और जब हम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करते हैं, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, तो ये एक मुख्तलिफ जिंदगी है। पुरानी जो खुद गर्जाना चीजें होती हैं, जिस्मानी जो ख्यालात ख्वाहिशें होती हैं, हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल कर मसीह में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और इस ईमान के साथ जिंदगी को बसर करते हैं। God has called us in Christ to be lights for others in this dark and corrupt world. We are born again to a living hope of life in the age to come. This is when God will establish his righteousness and his holy kingdom by his obedient servant, Jesus our Lord. Let us continue in Peter. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि खुदा ने हमें मसीह में बुलाया है ताकि उस इस जो तरीक और बदअनुमान दुनिया है, दूसरों के लिए रोशनी बने। हम पैदा हुए हैं आने वाले जमाने में जिंदगी को हासिल करने की उम्मीद जो है, वो वक्त के साथ जब हम खुदा के साथ रास्तबाज रहेंगे, वफादार रहेंगे, तो फिर हम आने वाली बादशाही में शामिल हो सकते हैं। उसमें हमारा जो है वो दाखला होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मजीद अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं पहला पतरस 1 Peter 1, 4 and 5. To an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. और यहाँ पर हम मजीद अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं पहला पतरस उसका बाब नंबर पहला और आयत नंबर 4 और 5 है। मैं तलावत करूंगा। ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें, वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो आसमान पर महफूज है। As we stay faithful to obeying the words of Jesus, God is guarding your imperishable and pure inheritance. This is what is waiting for us. Like I said before, all selfish things that are chased after in this life will perish. और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम मसीह के अल्फाज को मानते हैं और वफादार रहते हैं कि खुदा जो है वो इस गैर फानी जिंदगी में भी हमारी जो है वो हिफाजत करे, और हमें उस वक्त का इंतजार है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि तमाम खुद गर्ज चीजें जिनको हम अपनी जिंदगी में से जो काम करते हैं लेकिन हम उनको छोड़ देते हैं। What God promises to do, he will do it. When God had prophets tell of a coming Messiah who would die and be raised to life again, it happened. We now have the promise of the Messiah's return. God will establish his imperishable kingdom through Jesus Christ. Be ready. We live for him. We look for him. और खुदा जो वादा करता है हमारे साथ, उस वादे को हमने अपनी जिंदगियों के अंदर याद रखना है। जब खुदा के पास नबियों ने आने वाले मसीह के बारे में बताया कि कौन है, उसके बारे में सब कुछ बताया, और उस वादे के मुताबिक जो बादशाही है जो लाजवाल है, ना खत्म होने वाली है, हमेशा के लिए वो कायम रहेगी, और वो उसको क्या करेगा, तैयार करेगा। और हमें अपने जीते जी जब हम इस दुनिया में जिंदा हैं तो उसकी तलाश करने की जरूरत है। Let's continue reading in 1 Peter 1:13 through 16. Therefore, preparing your minds for action, being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you will be holy, for I am holy. और यहाँ पर हम अपनी मजीद रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे पहला पतरस उसकी पहला ही बाब और उसकी 13, 14, 15 और 16 आयत।
और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो मसीह यीशु के ज़हूर के वक़्त तुम पर होने वाला है। और फर्माबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारे तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। In verse 13, it says to set your hope fully on the grace that we brought to you. Like I said before, we all make preparations for future events, whether harvesting crops or waiting for a guest. These are hopeful things. We are to make sure that the most important thing we prepare for is the revelation of Jesus Christ. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि एक फजल की जो उम्मीद है जो हमारे लिए है, जो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी फसल की कटाई है या कोई और जो हमारी जिंदगी में सिस्टम है उसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो फिर हमें खुदा यीशु मसीह की उस बादशाही जो वो तैयार करेगा और वो जो लाजवाल होगी उसके बारे में अभी से फिक्र करने की जरूरत है। We Amen. fully hope for his arrival by obedience to him now. This is our challenge. You and I may have lived sinfully in the past. When much of the world around us may be living sinful lives, it may be tempting to return to the passions of our former ignorance. But we are to conduct ourselves as holy and pure people of faith. In 1 John 3:3, it says that everyone that hopes in him purifies himself just as he is pure. Stay active in our minds by looking for the Lord Jesus to return. This motivates holy living. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि हम अब उसकी फर्माबरदारी से उसकी आमद की पूरी उम्मीद रखते हैं। ये हमारा चैलेंज है, हमारी जिंदगियों के अंदर ये हमारे लिए चैलेंज है। और हमें माजी में गुनाह के साथ जो हम रहे हैं उसको भूलकर अपनी मौजूदा जो जिंदगी है उसको क्या करना है, भरपूर तरीके से खुदा के साथ क्या करना है, हमने मुंसलिक रहना है और इस बात पर कायम रहना है। और जब हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 30 आयत में खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि हर वो शख्स जो उस उम्मीद पर रहता है यानी कायम है वो पाक हो जाता है क्योंकि वो खुद पाक है। Let us continue in 1 Peter 1, verses 17 through 23. And if you call on him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in these last times for the sake of you, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. और यहाँ पर खुदा के बंदा ने मजीद जो 17 से लेकर 23वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ी है। और जब के तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुवाफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोना चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यस्सु यानी मसीह के बेशक कीमती खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से बेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातर हुआ। क्यों हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेराया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि
तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो. As we are born again by the imperishable word of God, we take our interest off of ourselves, love one another with intention, not to make ourselves look good or to make others do something we want, but from a pure heart, as God loves us and as Christ loved us by his sacrifice. This is having faith and hope in God. जैसा कि हम खुदा के गैर फानी कलाम के जरिया से हम जब दोबारा पैदा हुए हैं तो हमने अपने मफादात को खुद से दूर करना है, एक दूसरे से खालस नियत के साथ क्या करना है जी, बेराया खालस नियत के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत जो है वो करनी है, एक दूसरे को अच्छा दिखाना नहीं सिर्फ, बल्कि अपने दिल को पाक करना है, दूसरों के साथ प्यार करना है, जिस तरह के जनाब मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर बेराया मोहब्बत की उसी तरह हमने भी करनी है. Let us go to 1 Peter chapter 2, verses 1 through 3, and then I will make a few more points and finish for the night, okay? So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. बस हर तरह की बदगोही और सारे फरेब और रयाकारी और हसद और हर तरह की बदगोही को दूर करके नो आज बच्चों की मानद खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ. अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है. In order to love with a pure heart, we must remove obstacles. Replace malice, deceit, hypocrisy, and slander with the pure spiritual milk of the imperishable word of God. This is the path of salvation from the day of wrath. Hope keeps us pure, friends. Let us set our hope fully for that day. और आज की शाम में आप सबसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप खालस नियत के साथ अपनी जिंदगी के अंदर से बदनीयती को, फरेब को, मुनाफकत को और हर तरह के शैतानी जो काम आपकी जिंदगी के अंदर है उनको निकाल अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो इस उम्मीद को रखें कि जनाब मसीह आने वाले हैं और इस उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को बसर करें. So, when does this say happen? When will the Lord Jesus return? In the Gospel of Mark, chapter 13, Jesus provided some idea of when to expect it. और हम मजीद देखते हैं कि जनाब मसीह जब आएंगे, कब आएंगे, वो दिन क्या होगा, इसके बारे में जो मरकज के मार्फत लिखी गई जनाब मसीह की अंजील है उसका 13वां बाब है. Mark 13, verses 26, 32, and 33. And then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. यहाँ पर खुदा के बंदा ने आयत नंबर उसकी 26वीं और 32वीं 33वीं पढ़ी है, मैं रीड करूंगा उसको. और लिखा है कि और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे. आयत नंबर 32वीं. और लिखा है कि खबरदार, 32वीं आयत है, लिखा है कि 32वीं आयत में, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप. खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा. This is another scripture showing that the Son is not God. Trinitarian theology states that the Son is fully human and fully God. All three persons of the triune God share the same essence and knowledge. No one person has an advantage above the other person in the Trinity.
और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि जब हम इस हवाले को देखते हैं तो हम इसमें जानते हैं कि खुदा एक वो वाहिद शख्सियत है जो इस वक़्त और इस की जो जिसको इल्म है उस वक़्त के बारे में, उसके अलावा बेटा भी ये नहीं जानता कि वो कब किस दिन वो दिन आएगा। But Jesus states clearly that the Son does not know the hour of his return. This hour is only known by the Father. So the Son has less knowledge than the Father. This one statement disproves the Trinity. The Son is fully human. God is one person. That is the Father. और यहाँ पर खुदा का बंदा बयान कर रहा है कि लेकिन यीशु वाज़िया तौर पर बयान करते हैं कि बेटे को उसकी वापसी के वक़्त का मालूम नहीं, बेटे को जब वो वापस आएगा इसके बारे में बेटे को नहीं पता, उस घड़ी का सिर्फ बाप जानता है, लिहाजा बेटे को बाप से कम इल्म है। ये एक बयान है और बेटा मुकम्मल इंसान है, खुदा एक शख्स जो शख्सियत है, जो बाप है और तमाम जो दुनिया का क्रिएटर है, जो तख्लीक करने वाला है। और यीशु ने कहा कि आप कहे क्या करो, जागते रहो, चौकन्ने रहो, तैयार रहो उस वक्त के लिए, लेकिन उस वक्त को सिर्फ खुदा जानता है, मैं खुद भी नहीं जानता। साबर साबर थोड़ा शॉर्ट हाँ करो जी, यार, टाइम काफी हो गया। बस जस्ट 5 मिनट सर जी, जस्ट 5 मिनट। यस कंटिन्यू ब्रदर रिचर्ड। ओके, बाकी टाइम काफी हो गया, वहां उठना शुरू हो गई है, जरा कोशिश जल्दी करें। Diary, just give me just 5 minutes, please. हाँ। Okay, brother. Rich. Okay, are we done? Yes, 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 I know. Oh, okay. So thank you for having me. And I'll say a couple words here. So let God be all in all. Our Lord come. Shukriya. Alvida. अलविदा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लो जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ सलाम। तो खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਧਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। All right. God bless you. Shabakar. God bless you. All right. Bye-bye. Thank you.